We are in trouble. Spiritually, emotionally, physically, I'm in pain, and I worry. Australia bowled out for 104 this morning. India now none down for 170 something, 170 too many. Ooh, it's a lot of numbers. Is the high quality batting. After no one saw this coming, and the way Jaswal and KL Rahul went out, the Aussies didn't bowl bad. They hit some good areas. They asked a lot of questions, but the batters played late under their eyes, and hats off to both teams. It was a contest out there now, and now we have a real test match on. India is bossing Australia, bullying and terrorising us in our own harsh climes. Yeah. They cleaned us up with the ball, and now they leave us witnessing, I think for one of the first times under Pat Cummins' captaincy, the Australian national team demoralised and wilting under its own sun, which must be referenced at all times. फर्स्ट टेस्ट की जो थर्ड टेस्ट सेशन में तो इंडिया लीड कर रहा है बाय 152 रन। तो अब क्या आपको लगा है क्या पिच इजी हो गई है या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मीडियोकर हो गई? क्योंकि कमेंटेटर्स कह रहे थे इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं लग रही। Can you see a weakness in this Indian opening partnership? Well, not at the moment. Their concentration was outstanding. And the one thing they did really well today, they absorbed the pressure. That first 15 overs was hard work. ऐसे ही दो बल्लेबाज जयसवाल और केएल राहुल आए हैं, उन्होंने अपने डिसिप्लिन से, अपनी इंटेंसिटी से और अपने कैरेक्टर से और जो उनकी फीट मूवमेंट थी उससे उन्होंने कैंगरूज को धचका दिया और खूबसूरत बैटिंग करके 172 की ओपनिंग पार्टनरशिप्स रही दोनों के अंदर और जबरदस्त क्रिकेट खेले हैं। बड़ी जबरदस्त सिचुएशन में है भाई इंडिया तो, मतलब यानी जो पिच थी उसका क्या बिहेवियर हुआ है ये सब हैरान हो गए हैं। 46 ओवर तक भी जॉश हेजलवुड ऑल्दो वो विकेटलेस था, फ्रस्ट्रेटेड थे, बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव हो रही थी, पुअर हो रही थी, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने सही उनको प्रेशर में रखा और फ्रस्ट्रेट किया ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया की जबान में जवाब दिया जो कि है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, उनको साइकोलॉजिकली डैमेज करना। इंडिया कमांड में है, इट इज अ गुड बैटिंग बाय जयसवाल एंड केएल राहुल। आई मीन अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हमने देखी, देन जस्ट रियली पावरफुल शॉट्स बाय जयसवाल। सो इंडिया अभी फिलहाल दे आर लुकिंग गुड। एंड सो आपको क्या लगता है कि व्हाट वुड बी अ टास्क फॉर ऑस्ट्रेलिया? A reasonably demoralising, a tricky day for the hosts. There must have been something that got you excited. Well, I'm going to take it away from the cricket today. Okay. What I got excited about is the rumour that Mohammad Shami is not far away. And what we heard today, I don't know if it's true, but we're hearing Mohammad Shami is going to be available for the pink ball test match. हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम जाती है तो हमारे साथ किस तरह का मजाक उड़ाया जाता है, किस तरह से तमस्कर उड़ाया जाता है, ये आई थिंक बेहतरीन लफ्ज उर्दू का। और जब इंडिया जाता है और इंडिया के बल्लेबाज और इंडिया के युवा खिलाड़ी उनकी वो बैंड बजाते हैं कि भाई वो कुछ बोलने लायक नहीं होते। और जैसा मैंने आपको बोला पिछली वीडियो में, रोने वाली उनकी शक्लें हुई होती हैं और पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की बत्ती गुल हुई। So I know that he's been bowling in the Ranji Trophy. He's been bowling pretty well. He's got a new haircut as well. Very fine, very fine. And he could well be. I mean, Rohit Sharma, of course, is also on the comeback. He might well come out for the second test. Mohammad Shami. But you say you're excited. I wouldn't be excited if I was in Australian shoes. Well, the thing about this show, you want to see the best out here. And we've seen the crowd today, how much passion they have. The Indian fans are still there cheering Virat Kohli while he practices his forward defence. So you want to see the best players out here. And Mohammad Shami to come back to complement this attack. Rana, I thought, did a really, really good job on debut. He got 3 wickets. And he got quicker as the game went on. He's bowling balls in the mid-140s when he got a lot more confidence. But I am excited to see Mohammad Shami, if the rumour is true, is around for a pink ball test. सेकंड इनिंग में देखा ही होगा आपने अभी जिस तरह से जायसवाल ने अपनी टैक्टिकल और टेक्निक चेंज किए, लेट खेल गए, बॉल की तरफ नहीं जा रहे और पेस भी स्लो हुई है और बहुत टाइम लिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया का ये है कि उनको दूसरे तीसरे स्पेल में अगर आप ले आए विदाउट लॉस तो वो फिर मुश्किल में आ जाते हैं, आ ही चुके हैं ऑलरेडी। देखिए जिस तरह की न्यूजीलैंड की सीरीज अभी पीछे इंडिया खेला है, भारत को बहुत सारे उनके ही एक्स क्रिकेटर्स राइट ऑफ कर चुके थे, प्लस रिकी पॉन्टिंग, बॉर्डर, वॉ, गिलक्रिस्ट, इन सब के अगर आपने स्टेटमेंट्स देखी हो तो किसी ने 3-1, किसी ने 3-2, किसी ने 4-0 डेविड वार्नर ने बोला। तो भारत को सबने राइट ऑफ किया हुआ था कि ये भारत की साइड जो लो इन कॉन्फिडेंस है ये वहां पे कुछ कर नहीं पाएगी। और इस दफा याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि पहले बुरी तरह हार चुके हैं ऑलरेडी,
इस दफा जो इनको मैच के वेन्यूज भी दिए हैं वो पहले ही 3 मैच इस तरह के हैं जहां ऑस्ट्रेलिया हमेशा डोमिनेट करता है और मेलबर्न जो भारत को सूट करता है वो चौथा मैच है। तो पूरी कोशिश की है ऑस्ट्रेलिया ने कि इस दफा जैसा भी हो सके इनको जीत के जाने नहीं देना, लेकिन भारत आया, भारत स्टूड टॉल। पहला ब्रेव डिसीजन जो उन्होंने किया है, मॉइस्चर था पिच के अंदर, पहले बैटिंग की। एज ए टूरिंग साइड आप बेसिकली ये चाहते नहीं है कि वहां जाके आप चाहते हैं कि दूसरे खेलें और आप थोड़ा पिच को एनालाइज कर लें, लेकिन उनको पता था कि यहाँ पे जितने भी पीछे भी रिसेंट मैच हुए हैं जो पहले बैटिंग करता है वो जीतता है, क्योंकि पर्थ का वो पिच होता है कि जो तीसरे दिन के बाद से, स्पेशली तीसरे दिन के अंदर ही आपके जो सारे जो क्रैक्स हैं वो खुलने लग जाते हैं। तो आई थिंक ये ग्रेट लीडरशिप है, ग्रेट अवेयरनेस है। बुमराह जिस तरह अभी बात की, बहुत जबरदस्त बॉलर है। साथ ओपनर्स की जो बात की है राशिद भाई ने, बिल्कुल ठीक है, ही स्पॉट ऑन। बहुत लेट खेल रहे हैं, बॉल को आने दे रहे हैं, लेकिन एक और चीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ बैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो फीट मूवमेंट्स हैं वो डिसाइसिव हैं। अक्सर होते हैं कि इंसान जो है ना 2-2 3-3 दफा शफल करने लग जाता है, आपका पैर 3-3 दफा टैप होने लग जाता है, वहां आप स्ट्रगल कर जाते हैं। लेकिन हमने इन दोनों ओपनर्स को देखा कि जो बॉल आगे है ये पूरा आगे गए हैं, जो पीछे आए इन बिटवीन नहीं रहे। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बेसिकली मजबूर नजर आने लग गया और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया मैच अभी से हार गया। इंटरेस्टिंगली आप ये बात करें बिकॉज कमेंटेटर्स सेड द सेम थिंग, दे सेड द सेम, स्पॉट ऑन दैट, कि सेड द बॉडी लैंग्वेज इज। तो आप हमें इजी ले रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग कह रहे हैं वी वर बेटर देन देम। एक छोटी सी गलती चाहिए होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और एज अ बैट्समैन आप कैच पकड़ा के निकल जाते हैं, लेकिन टेक्निकली बहुत साउंड इनिंग खेली जायसवाल ने। और जायसवाल मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, लेकिन एक मुंबई की सड़कों से, डेयरी के फार्म से काम करते करते वो जिस डगर पे अब पहुंच आए हैं, यहाँ पे वो सुपरस्टार बन रहे हैं। मुंबई की सड़कों से तक से पर्थ की ग्राउंड तक का सफर जो इन्होंने तय किया, बहुत जबरदस्त स्टोरी है इस बच्चे की भी, और ये बच्चा हर दिन इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है। और जब आप पर्थ के अंदर स्कोर करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, आपका लेवल बढ़ जाता है और इसी तरह बड़ी बड़ी बातें भी आपके बारे में फिर होने लग जाती हैं। लोग आपको कंपेयर करने लग जाते हैं, कंपैरिजन शुरू कर देते हैं और आपकी लाइफ स्टोरी पे ध्यान देने लग जाते हैं, लोगों का आप में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और अब यही हुआ है, इसलिए फिर हमने भी इनकी स्टोरीज देखी कि कहाँ से आए, कहाँ पे काम करते थे, मजदूरी करते थे, वो छोड़ के ग्राउंड्स के बाहर बैठ के मैचेस देखा करते थे, ये दूसरों को खेलते हुए देखा करते थे, फिर अपने आप को बैक किया, अपने टैलेंट को बैक किया, सब छोड़ दिया और क्रिकेट में चले गए। और क्रिकेट में इसलिए आए वो कि उन्होंने पर्थ में आके भारत को जो पीछे शिकस्त हुई है उससे निकालना था, भारत को ये मैच में अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा करना था। और ये डेस्टिनी है जो जायसवाल के आज साथ खड़ी है, और जो इनिंग वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं वो सदियों याद रखी जाएगी। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आप इस तरह की मैच विनिंग्स, इम्पैक्ट इनिंग्स खेलते हैं व्हेन रिक्वायर्ड, वो याद रखी जाती है। तो एक ब्राइट फ्यूचर और एक सुपरस्टार इन मेकिंग है जायसवाल की शक्ल में, और जायसवाल से भारत का जो ड्रेसिंग रूम और अवाम जो क्रिकेट से प्यार करती है बहुत खुश होगी। लेकिन राहुल, बहुत मुश्किल इनिंग थी, जबरदस्त बॉलिंग अटैक के सामने उन्होंने बेबस किया है उनकी बॉलिंग को, और हर बॉल का जवाब मौजूद था उनके पास। उन्होंने ड्राइव्स जो उनकी स्ट्रेंथ है जबरदस्त मारी, कट शॉट्स बहुत अच्छे खेले, स्ट्रेट ड्राइव्स चेक किए, अच्छा शॉर्ट बॉल पे भी उन्होंने पुल मारे। तो ऑल इन ऑल जवाब नजर नहीं आया कोई भी ऑस्ट्रेलिया के पास, और ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल अपने घुटनों पे नजर आया दूसरे ही दिन, जो कि बहुत रेयर ट्रेट है। आप रोज रोज ऑस्ट्रेलिया को ऐसे नहीं देखते हैं। अब इससे अब इससे होगा ये, पहली चीज तो ये हो गई कि जो हमने बोला था कि बैटिंग कंडीशंस मिल गई इंडिया और हिंदुस्तान ने उसका भरपूर फायदा उठाया। अब हो ये रहा है कि कुछ बॉल ऑलरेडी नीचे रहने लग गए हैं। हमने आपको बोला था कि पर्थ के अंदर क्रैक तीसरे दिन से खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये गुड साइन होगा भारत के लिए, बिकॉज आखिरी इनिंग जो है ऑस्ट्रेलिया ने खेलनी है। ऑलरेडी जो लीड इतनी चढ़ गई हुई है और आउट है उनका कोई नहीं, तो पूरी बैटिंग लाइनअप पड़ी है। और अब जिस तरह इस पिच पे कल से क्रिकेट होती जाएगी, क्रैक्स खुलते जाएंगे, डिटोरिएट होता रहेगा पिच, ऊपर नीचे रहता रहेगा, बाउंसर्स भी जो हैं जो ऊपर से जा रहे हैं वो बॉडी पे आते हैं, खेलना मुश्किल हो जाता है एज अ बैट्समैन। तो ये एज मौजूद है इंडिया के पास। भारत इस मैच के अंदर
पूरी तरह से डोमिनेट है। डोमिनेट तो कल भी कर रहा था, लेकिन आज का जो दिन भारत को मिला है उससे तो बिल्कुल जो विन परसेंटेज भी है वो 90% भारत दिखा ही रहा होगा। और भारत एक हिस्टोरिक जीत से कुछ ही लम्हे दूर है। कुछ कहना अभी एक कबलस वक्त हो जाएगा, क्रिकेट है, ऐसा कहते नहीं है, लेकिन भारत के चांसेस बहुत ब्राइट हो गए हैं। अनलेस भारत खुद मौका न दे दे ऑजी बैट्समैन को इस मैच के अंदर आने का, कुछ ऐसी पार्टनरशिप ना लग जाए, कोई ट्रेविस की इस तरह की इनिंग ना लग जाए कि भारत बैकफुट पे आए, अदरवाइज कोई ऐसा लग नहीं रहा है। और एक अच्छी बात यह है कि कंडीशन सूटेबल हो गई हैं। पहले दिन जो ग्रास का कलर था ग्रीन था, आज वो टोटली ब्राउन नजर आया। कल क्रैक्स ओपन होते हुए नजर आएंगे, लेकिन अभी तक चीजें ठीक चल रही हैं। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है विराट कोहली के लिए भी कि जिनका बल्ला बड़े अरसे से खामोश है, बड़े टफ पिचेस पे पीछे भारत के अंदर वो खेल के आए हैं, लेकिन हर इनिंग में अच्छे लग रहे होते थे। यहाँ उनके पास भी बड़ा अच्छा मौका है कि जिसे कहते हैं ना बहती गंगा में वो भी हाथ धोते चले। ये यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया की साइड है उनके बॉलर थके होंगे, गिरे होंगे, बॉल भी जो है पुराने होंगे, विकेट अच्छा होगा, चांस होगा कि वो अपने बल्ले पे बॉल मारे। और आने वाली सीरीज में, ये 5 मैचों की सीरीज है, विराट कोहली का अच्छी फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। याद रहे विराट कोहली जो है इस सीरीज में की होंगे, जितना भी क्वाइट चल रहे हैं, अभी दूसरे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मैच आएंगे जहां विराट कोहली की जरूरत पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि अभी रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली फॉर्म में चल नहीं रहे हैं, शामी, ये तीनों जो हैं जब आ जाएंगे, शायद अगले मैच में आ जाएंगे, शामी अभी डोमेस्टिक खेल रहे हैं बैक होम, तो ये तीन आके भारत की टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और ये जो पहला पड़ाव था वो अगर भारत पार करने में कामयाब होता है तो भारत के चांसेस जो हैं ये सीरीज में बहुत बढ़ जाएंगे। और वो लोग जो भारत को राइट ऑफ किए हुए थे और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे भारत के बारे में कि भारत तो ये है, नहीं कर पाएगा, ऐसे है वैसे, उन्होंने करके दिखा दिया। ये लो जी। सो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया को भारतीय टीम से इस समय खौफ आ रहा है, क्योंकि जायसवाल और केएल राहुल की सेंसिबल बैटिंग के बदौलत भारतीय टीम इस मैच में ड्राइविंग पोजीशन पर पहुंच चुकी है। और खासकर जायसवाल ने जिस तरह की बैटिंग ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलियंस के घर में करके दिखाई है, ये चीज़ देखते हुए ऑस्ट्रेलियन मीडिया द्वारा इस सीरीज से पहले जिस तरह की हाइप जायसवाल को लेकर बनाई गई थी, जिस तरह से जायसवाल को आने वाले टाइम का ऑस्ट्रेलिया का किंग बताया जा रहा था, तो जायसवाल ने उस हाइप को जस्टिफाई किया है अपनी पारी के बदौलत। उन्होंने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को मायूस नहीं किया। जिस तरह से हर भारतीय बैट्समैन का एक सपना होता है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर वो एक बड़ा शतक बनाए, तो जायसवाल ने अपना वो सपना पूरा करते हुए 167 की एक बड़ी पारी खेली है। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 167 स्कोर बनाकर जायसवाल आउट हुए हैं। लेकिन जायसवाल के आउट होने के साथ ही ऋषभ पंत भी गैर जिम्मेदारी भरा शॉट खेलते हुए आउट हो गए हैं और उनके साथ साथ ध्रुव जुरेल भी अपनी विकेट गंवा चुके हैं। लेकिन विराट कोहली अभी तक क्रीज पर जमे हुए हैं, उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं। जब तक विराट कोहली क्रीज पर मौजूद हैं, हमारी उम्मीदें बरकरार रहेंगी। अब तक भारतीय टीम इस पारी में 370 रन की लीड ले चुकी है। 400-450 का टारगेट हासिल करवाना अब विराट कोहली के हाथ में रहेगा, उनकी जिम्मेदारी रहेगी। उनको भारतीय टीम का एक स्तंभ होते हुए, एक भारतीय टीम का एक सीनियर बैट्समैन होते हुए अपनी यह जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। लेकिन अभी तक जायसवाल और केएल राहुल की पारियों के बदौलत भारतीय टीम इस मैच में एक सॉलिड पोजीशन पर पहुंच चुकी है और विराट कोहली को एक अच्छी बड़ी पारी खेलते हुए भारतीय टीम को एक विनिंग पोजीशन पर पहुंचाना होगा। बाकी देखते हैं कि आज का दिन खत्म होते होते भारतीय टीम कितने रन बनाती है, ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय टीम कितना टारगेट रखती है। अभी तक इस मैच में काफ़ी टाइम पड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यह टारगेट चेज करना आसान नहीं होगा। खासकर चौथी पारी में पर्थ की पिच पर खेलना मुश्किल साबित होगा, क्योंकि धीरे धीरे पर्थ का पिच ड्राई होता जा रहा है और बाउंस भी थोड़ा अनइवन होना शुरू हो गया है। तो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के लिए चौथी पारी में यह टारगेट हासिल करना आसान नहीं होगा। बाकी उम्मीद करेंगे कि जायसवाल की इतनी मेहनत को फल लगे और भारतीय टीम इस मैच से जीत कर निकले। हमारी यही उम्मीद रहेगी भारतीय टीम से। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया तीसरा मैच जो डे नाइट होने वाला है उसको लेकर अभी से चिंतित है। जैसे कि आपने देखा कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया को यह फिक्र सता रहा है कि भारतीय टीम का बॉलिंग अटैक तो अभी से काफ़ी मजबूत लग रहा है और अगर मोहम्मद शमी भी तीसरे मैच में इस बॉलिंग अटैक में शामिल हो गए
तो इस बॉलिंग अटैक को झेलना ऑस्ट्रेलियंस के लिए आसान नहीं होगा। बाकी आपका इसके ऊपर क्या विचार है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।